Good morning, everyone. Here I am going to teach you about your subject Embedded System. In last lecture, I covered 2 points of chapter first, and in this lecture, I am trying to complete remaining point. The third point of chapter 1 is features of 89C51, PIC, AVR, and ARM microcontroller with application. The first microcontroller is 89C51. It is an 8-bit microcontroller, belongs to Atmel 8051 family. It is low power, high performance microcontroller with 4 KB of PEROM. PEROM stands for Programmable Erasable Read Only Memory. It's having 128 bytes of RAM. It can be erased and programmed to a maximum of 1000 टाइम्स. ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताया हुआ है 89C51 का. 89C51 उसको हम लोग 8051 भी बोल सकते हैं बिकॉज 8051 एंड 89C51 हैविंग सेम फीचर्स. And 89C51 is 8-bit microcontroller. It is high performance microcontroller. Also, it's having low power. इसमें जो मेमोरी यूज़ होती है रैम है 128 बाइट की एंड रोम है 4 किलोबाइट की. उसको इरेज भी कर सकते हैं एंड प्रोग्राम भी कर सकते हैं 89C51 में अप टू 1000 टाइम्स. The next slide is features of 89C51. हम लोगों ने डिस्कशन में ही फीचर्स देख लिए थे. That is, it's having 4 kilobytes of ROM, means flash memory, 128 bytes of internal RAM. It's having 32 programmable input/output lines. It's consisting 2 16-bit timer/counter. It also consisting 6 interrupt sources, etc. बहुत सारे फीचर्स हैं, मैंने कुछ ही फीचर्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए. Next are the application of 89C51. It is used in energy management. Also, it is used in touch screens. Also, it is used in automobiles. And the last one is the medical devices. Energy management में as a metering system के तौर पर हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं. टच स्क्रीन मीन्स सेल फोन में जो टच स्क्रीन्स है, media players and gaming devices are the example of microcontroller based touch screens. उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ ऑटोमोबाइल्स. ज़्यादातर व्हीकल हैंडलिंग के तौर पर इसका यूज़ होता है. एंड लास्ट वन इज़ मेडिकल डिवाइसेस. इन मेडिकल डिवाइसेस सच एज ब्लड प्रेशर एंड ग्लूकोज मॉनिटर यूज़ दिस माइक्रोकंट्रोलर. Next microcontroller is PIC microcontroller. It is a peripheral interface controller. It is fast and simple to implement program, and due to this the PIC become a successful microcontroller. It also consisting of RAM, ROM, CPU, ADC, DAC, timer, counter. PIC mostly used Harvard architecture, so that's why it can be said that it is faster than 8051 which uses von Neumann architecture. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे PIC का फुल फॉर्म क्या है. द PIC इज़ नथिंग बट पेरीफेरल इंटरफेस कंट्रोलर. बहुत ही फास्ट कंट्रोलर है. हम लोग उसमें सिंपली और इजीली क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. और इसकी वजह से PIC जो है एक सक्सेसफुल माइक्रो कंट्रोलर बन चुका है. Also, it consisting RAM, ROM, CPU, ADC, DAC, timer, counter. ये जो है वो हार्वर्ड आर्किटेक्चर यूज़ करता है. मोस्टली हार्वर्ड ही आर्किटेक्चर यूज़ करता है. सो दैट्स वाई इट इज़ फास्टर देन 8051 बिकॉज 8051 यूजेज वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर. हम लोगों ने हार्वर्ड एंड वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर लेक्चर फर्स्ट में देखे हैं. हार्वर्ड में 2 मेमोरीज यूज़ होती है, प्रोग्राम एंड डेटा.
प्रोग्राम एंड डेटा को डिफरेंट मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर देर इज़ ओनली वन मेमोरी in which we can store program as well as data. So due to this reason Harvard is very faster than von Neumann. So due to that the PIC is very faster than 8051. Next slide is features of PIC microcontroller. There are 13 input output pins and this pin can be configured individually either as an input or output. It uses SRAM flash memory. Its power consumption is low. It has different compiler MPLAB C18 compiler and Micro C Pro. बहुत सारे डिफरेंट कंपाइलर जो है वो यूज़ करता है. उसमें से दो कंपाइलर मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया. वन इज़ द MPLAB C18 कंपाइलर एंड सेकंड वन इज़ द Micro C Pro. पावर कंजम्पशन भी लो है इसका. मेमोरी यूज़ करता है वो SRAM है, फ्लैश मेमोरी है. 13 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है. एज ए इनपुट और एज अ आउटपुट हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उसको कॉन्फ़िगर इंडिविजुअली किया जाता है. एप्लीकेशन जो है PIC के, इट इज़ मोस्टली यूज इन स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स वेयर मेन कंसर्न इज ऑटोमेशन. सेकेंड एप्लीकेशन इज इट इज़ यूज्ड इन हीटिंग प्रोजेक्ट, गैस सेंसर प्रोजेक्ट एटसेट्रा. It is also used in security system. It is also used in industry and education field, means it is used in projects as well as lab. Next microcontroller is AVR microcontroller. It is developed in 1996 by Ulf Egil Bogan Vegard Wolin. So its name is derived from its developers and stands for Ulf Egil Bogan Vegard Wolin RISC microcontroller. It is also known as Advanced Virtual RISC. It includes the Harvard architecture. There are three types of AVR: Tiny AVR, Mega AVR and X Mega AVR. AVR माइक्रोकंट्रोलर जो है वो 1996 में डेवलप किया गया है. उसको डेवलप करने वाला जो है उसका नेम है अल्फ एगिल बोगन वेगार्ड वोलन और इसी के नेम पर जो है वो AVR का नेम रखा हुआ है. A means Ulf Egil Bogan, V means Vegard Olin, and RISC means R means RISC. RISC is nothing but Reduced Instruction Set Computer, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखे. ऑल्सो उसको अनदर नेम से भी जाना जाता है AVR को, वो है एडवांस वर्चुअल RISC. ऑल्सो AVR यूजेस हार्वर्ड आर्किटेक्चर एंड थ्री टाइप्स है AVR के. फर्स्ट इज टाइनी AVR. टाइनी AVR की साइज़ जो है वो स्मॉल साइज़ माइक्रो कंट्रोलर है. मेमोरी साइज़ भी स्मॉल है और सिंपल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज़ मेगा AVR. एज़ कम्पेयर टू टाइनी AVR, मेगा AVR में मेमोरी साइज़ ज़्यादा है, अप टू 256 KB और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको. एंड द लास्ट वन इज़ एक्स मेगा AVR. इसको भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है. इट ऑल्सो need large program memory and high speed. Next features of AVR. It's having flash memory up to 256 KB. It consisting two timers are of 8 bit and one is 16 bit. मल्टी फंक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको. मल्टीपल इंटरनल ऑसिलेटर्स अवेलेबल है. इंटरनल EEPROM up to 4 KB and internal SRAM up to 16 KBs are available. Applications of AVR. First is motion control, second one is for signal sensing, third one is for to interface motors and fourth one is for display on LCD. बहुत सारे एप्लीकेशंस है, यहाँ पे सिर्फ मैंने 4 ही एक्सप्लेन किया. नेक्स्ट प्रोसेसर इज ARM प्रोसेसर. ARM is stands for Advanced RISC Machine. It makes 32 bit and 64 bit RISC processor. means 32 बिट के और 64 बिट के प्रोसेसर्स जो है वो ये अवेलेबल है ARM के. ARM का फुल फॉर्म है एडवांस रिस्क मशीन. इसमें जो है वो रिस्क प्रोसेसर यूज़ होता है. हम लोगों ने ऑलरेडी देखे हैं रिस्क प्रोसेसर किस लिए यूज़ किया जाता है. इट इज़ अ रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर. बहुत सारे कम इंस्ट्रक्शंस यूज़ होते हैं और इंस्ट्रक्शंस जो कम एड्रेसिंग मोड को फॉलो करे उसको क्या बोलेंगे, रिस्क आर्किटेक्चर. एप्लीकेशंस हैं मोबाइल फ़ोन्स, सेट टॉप बॉक्स, टीवी राउटर, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स, कैमकोडर, GPS नेविगेशन सिस्टम एटसेट्रा.
Then the fourth point of chapter 1 is characteristics of embedded system. There are many characteristics are available. I am going to discuss one by one. The first characteristics is processor power. Processing power is different for different microcontroller. There are 8-bit, 32-bit and 64-bit microcontrollers are provided. Selection of processor is based on amount of processing power. बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर्स अवेलेबल हैं, 32-बिट के भी है, 8-बिट के भी हैं, 64-बिट के भी है माइक्रो कंट्रोलर्स अवेलेबल है। और हर माइक्रो कंट्रोलर के लिए हर डिफरेंट प्रोसेसिंग पावर है। 8-बिट के लिए जो प्रोसेसिंग पावर है वो 32-बिट से क्या है, डिफरेंट है। ऑल्सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द 64-बिट। सिमिलरली 32-बिट के लिए जो प्रोसेसिंग पावर है वो डिफरेंट है फ्रॉम 8-बिट एंड 64-बिट। जो भी कंट्रोलर है उसको सिलेक्ट किया जाता है प्रोसेसिंग पावर के हिसाब से। नेक्स्ट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स इज मेमोरी। मेमोरीज इज यूज फॉर स्टोरिंग द डेटा। बहुत सारे मेमोरीज आर अवेलेबल है, दैट आर द रैम, रोम, पी रोम एटसेट्रा। ऑल्सो सेकेंडरी स्टोरेज लाइक HDD, हम लोग क्या कर सकते हैं, HDD को भी एम्बेडेड किया जाता है सिस्टम में स्टोर करने के लिए, फॉर एग्जांपल मोबाइल। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स OS। देयर आर वैरायटी ऑफ OS आर अवेलेबल एंड देयर आर कैटेगराइज्ड आर embedded OS, real time OS and mobile OS, and this OS required the less space in memory as compared to desktop। मीन्स मेमोरी में अगर उसको स्टोर करना है OS को तो कम स्पेस में क्या होता है वो ऑक्यूपाई होता है एज कम्पेयर टू डेस्कटॉप। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज रिलायबिलिटी। एम्बेडेड सिस्टम आर एक्सपेक्टेड टू रन continuously for years without errors, and in some cases if recover by themselves if an error occur. So the software is usually developed and tested more carefully, and unreliable parts such as disk drivers, buttons are avoided. रिलिएबिलिटी मीन्स जो भी एम्बेडेड सिस्टम डेवलप की गई है वो बहुत सालों तक क्या करें, वर्क करें। अगर वर्क करें बहुत सालों तक तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस एम्बेडेड सिस्टम्स आर रिलिएबल। सो यही दिमाग में रख के जो है वो एम्बेडेड सिस्टम को डेवलप किया जाता है कि एम्बेडेड सिस्टम बहुत सालों तक चले, कस्टमर सेटिस्फाइड हो, और अगर उसमें कभी कोई एरर ऑकर्ड हुआ एम्बेडेड सिस्टम में तो समटाइम्स क्या होता है खुद ही रिकवर कर लेता है। ऑल्सो सॉफ्टवेयर जो डेवलप किए गए हैं उसको टेस्टेड किया जाता है बहुत ही केयरफुली, एंड ऑल्सो अनरिलायबल पार्ट्स सच एज द डिस्क ड्राइवर, बटन्स, उसको भी किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूनिट कॉस्ट। द मॉनेटरी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ईच कॉपी ऑफ सिस्टम एक्सक्लूडिंग NRE कॉस्ट। मीन्स टोटल मॉनेटरी कॉस्ट जो लगती है मैन्युफैक्चर करने के लिए सिस्टम को, उसको क्या बोलेंगे, यूनिट कॉस्ट। बट उसमें NRE कॉस्ट जो है वो इंक्लूड नहीं रहती। NRE इज नथिंग बट द नॉन रिक्योरिंग इंजीनियरिंग कॉस्ट। द नेक्स्ट इज नॉन रिक्योरिंग इंजीनियरिंग कॉस्ट। वंस द सिस्टम इज डिजाइंड any number of units can be manufactured without incurring any cost, hence the term non-recurring। मीन्स एक बार सिस्टम जो है वो डिज़ाइन हुई, उसके बाद अगर हम लोग को किसी भी यूनिट को फिर से मैन्युफैक्चर करना है तो उसमें बिना किसी कॉस्ट के हम लोग को क्या करना है, उसको मैन्युफैक्चर करना है। सो इट इज़ कॉल्ड एज द NRE कॉस्ट। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, NRE कॉस्ट बोलेंगे। सिस्टम डेवलप होने के बाद किसी भी यूनिट को फिर से मैन्युफैक्चर करना विदाउट एनी कॉस्ट, इट इज़ कॉल्ड एज द NRE कॉस्ट। द नेक्स्ट इज साइज। द स्पेस रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम मेजर्ड इन बाइट्स फॉर सॉफ्टवेयर एंड गेट्स और ट्रांजिस्टर फॉर हार्डवेयर। जो भी स्पेस लगने वाला है सिस्टम के लिए उसको क्या बोलेंगे, साइज। अगर हार्डवेयर देखेंगे तो उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, गेट्स। तो वो ट्रांजिस्टर गेट्स के लिए जितना स्पेस लगेगा उसको क्या बोलेंगे, उसकी साइज़ बोलेंगे। और
उसको हार्डवेयर को मेजर करना, हार्डवेयर की साइज़ अगर मेजर करना रहेगी तो हम लोग गेट्स और ट्रांजिस्टर में ही मेजर करते हैं, बट अगर सॉफ्टवेयर की साइज़ मेजर करना है तो उसको बाइट्स में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज पावर, द अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम्ड बाय द सिस्टम which determines the lifetime of a battery, since more power means more heat. सिस्टम जो भी पावर खर्च करता है वो क्या डिटरमाइन करता है, बैटरी की लाइफ टाइम। अगर ज़्यादा पावर खर्च हो गई मीन्स ज़्यादा हीट प्रोवाइड हो रही है, अगर कम पावर खर्च हुई तो कम हीट क्या हो रही है, प्रोवाइड हो रही है। दिस इज़ नथिंग बट द पावर। Next is flexibility. It is the ability to change the functionality of system without incurring heavy NRE cost. Software is typically very flexible. Flexibility means continuously changes the function of system. Continuously जो भी functions रहेंगे system के वो क्या हो, change हो पब्लिक के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो उसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस होने वाली चीज़ें वो है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं होते जितने सॉफ्टवेयर चेंजेस होते हैं, बट चेंजेस ऐसे हो कि उसमें ज़्यादा हेवी एनआरई कॉस्ट की ज़रूरत ना पड़े, उसको क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी। टाइम टू मार्केट, टाइम टू मार्केट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर द सिस्टम टू द पॉइंट वेयर सिस्टम कैन बी सोल्ड टू कस्टमर। मीन्स ये एक पीरियड है, कहाँ से कहाँ तक, जहाँ से हम लोग प्रोडक्ट डेवलप करते, डिज़ाइन करते हैं, वहाँ से लेके मार्केट में सोल्ड करने तक जो पीरियड है, मार्केट में बेचने तक जो पीरियड है, उसको बोलेंगे टाइम टू मार्केट। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ चैप्टर 1 इज क्लासिफिकेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। देयर आर 2 टाइप्स, वन इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड फंक्शनलिटी requirements and second one is based on the performance of microcontroller. The first embedded system type, that is based on performance and functional requirements, carry 4 parts: a real-time, stand-alone, networked and mobile. And the second one consisting 3 parts, that is small scale, medium scale and sophisticated. The first embedded system is a small scale embedded system. It consisting single 8 or 16-bit microcontroller. It requires little hardware and software complexity. It is battery operated. Usually C is used for developing it. हम लोग स्मॉल स्केल में सिंगल 8 और 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं। 8 बिट भी चल सकता है माइक्रो कंट्रोलर और 16 बिट भी चल सकता है, बट एक ही सिंगल ही यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है वो कम है, इसमें बैटरी के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं, और जो भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं वो बाय यूजिंग सी लैंग्वेज से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एम्बेडेड सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ द मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम. इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल और मल्टीपल 16 और 32-bit microcontroller. The simulator, debugger and integrated development environment tools are used. स्मॉल स्केल में हम लोगों ने देखे थे कि उसमें 8 और 16-bit माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होता है, बट एक ही कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, सिंगल और 32-bit माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं, बट सिंगल भी कर सकते हैं और मल्टीपल भी कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स लाइक सिमुलेटर, डिबगर, IDE टूल्स हम लोग क्या कर सकते हैं, मीडियम स्केल में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सोफिस्टिकेटेड एम्बेडेड सिस्टम. इट इन्वॉल्व हाईली कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स. Such systems are commonly built around high performance 32 or 64-bit RISC controller और प्रोसेसर। हम लोगों ने स्मॉल स्केल में देखे थे कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या है, लेस है, बट इन द केस ऑफ द सोफिस्टिकेटेड एम्बेडेड सिस्टम there are hardware and software complexities are more. Means the system which involves the high complex hardware requirements, then it is called as the sophisticated embedded system. Also it uses 32 or 64-bit RISC processor or controller. Next system is a stand-alone system. It does not require any supporting network. The input can be a electrical signal from sensor or command from human being, such as pressing a button, and the output can be electrical signal to drive another system or display like LED और LCD. स्टैंड अलोन एम्बेडेड सिस्टम में किसी भी सपोर्टिंग नेटवर्क का यूज़ नहीं किया जाता है, इंटरनेट
कनेक्शन की ज़रूरत भी नहीं यहाँ पे। ऑल्सो जो भी इनपुट दिया जाता है वो आइदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल रहेगा फ्रॉम सेंसर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी हम लोग इनपुट दे सकते हैं, और एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग किसी भी बटन को प्रेस करके भी इनपुट दे सकते हैं, और आउटपुट भी उसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल रहेगा किसी सिस्टम को ड्राइव करने के लिए या किसी एलईडी या एलसीडी को ड्राइव करने के लिए। नेक्स्ट जो है वो रियल टाइम सिस्टम। मैनी एम्बेडेड सिस्टम मस्ट कंटिन्यूसली रिएक्ट टू चेंजेस इन सिस्टम एनवायरनमेंट and must compute certain result in real time without delay। बहुत सारे एम्बेडेड सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस कंटिन्यूसली ऑकर्ड होते रहते हैं, और उस कंटिन्यूसली चेंजेस की वजह से उनको रिस्पॉन्स भी बहुत ही फास्ट देना पड़ता है विदाउट एनी डिले। वो बिना डिले करके ही उसमें क्या है हम लोग को आउटपुट भी प्रोवाइड करना है उस चेंजेस के हिसाब से। उसको क्या बोलेंगे, रियल टाइम सिस्टम। इसके भी दो टाइप्स हैं, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम एंड हार्ड रियल टाइम सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे हार्ड रियल टाइम सिस्टम। एक एग्जांपल लेंगे कार क्रूज़ की। कार क्रूज़ कंट्रोलर जो है वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहता है जब भी कार चलाते हैं तभी, और वो स्पीड एंड ब्रेक को क्या करता है, रिएक्ट करता है। कैसे स्पीड है, स्पीड कहाँ पे फास्ट लेनी है, ब्रेक कहाँ पे देना है। अगर वो वैसा न करे तो उसकी वजह से सिस्टम जो है वो फेल हो जाती है और पूरा कंट्रोल जो है कार जो है वो अनकंट्रोल हो जाती है। सो दिस कॉल्ड एज द हार्ड रियल टाइम सिस्टम। बट इन द केस ऑफ द सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम वी टेक एग्जांपल of a desktop system which focus on the computation. There is a delay in those computation does not result in system failure। अगर कोई भी डिले आया, डेस्कटॉप के एग्जांपल में हम लोगों ने देखे कि वो कंप्यूटेशन पे फोकस कर रहा है, अगर उन कंप्यूटेशन में कुछ भी डिले आ सकता है तो उसमें उसकी वजह से सिस्टम फेलियर होने का चांस ही नहीं है। सो इट इज़ कॉल्ड एज द सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। बट इन द केस ऑफ द हार्ड रियल टाइम सिस्टम, अगर कुछ भी डिले आ गया सिस्टम के अंदर तो सिस्टम फेल होने का चांस है। नेक्स्ट इज नेटवर्क डिवाइसेस। The embedded system accessed by the network such as LAN or internet are called network information devices. Such embedded systems are connected to network using protocols such as TCP/IP. Some examples are web browser such as Internet Explorer, web camera which is also connected to internet। ऐसी एम्बेडेड सिस्टम जो कंटिन्यूसली नेटवर्क को कनेक्ट रहे और नेटवर्क को एक्सेस करे, सच एज लैन और इंटरनेट। लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट आर कॉल्ड नेटवर्क डिवाइसेस। और ये एम्बेडेड सिस्टम जो है वो नेटवर्क को एक्सेस करते हैं बाय यूजिंग नेटवर्क प्रोटोकॉल सच एज TCP/IP। ऑल्सो सम एग्जाम्पल्स आर अवेलेबल, दैट इज वेब ब्राउजर such as Internet Explorer, web camera which is also connected to the internet। Next embedded system is mobile devices। Mobile devices such as mobile phones, smartphones etc. are the special category of embedded system। The limitation of mobile devices are small size, memory etc. are same as those found in embedded system, hence mobile devices are considered as embedded system। इसमें क्या बताया हुआ है कि मोबाइल डिवाइसेस सच एज मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स, इट इज़ द स्पेशल कैटेगरी ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम की स्पेशल कैटेगरी है। मोबाइल के जो लिमिटेशंस हैं, साइज़ हो सकती है, मेमोरी हो सकती है, किसके सिमिलर है, एम्बेडेड सिस्टम के सिमिलर है। सो हम लोग मोबाइल डिवाइसेस को क्या कह सकते हैं, एम्बेडेड सिस्टम कह सकते हैं। नेक्स्ट सिंगल फंक्शन एम्बेडेड सिस्टम। सिंगल फंक्शन मीन्स एक ही प्रोग्राम को बार बार रिपीट करना इज नथिंग बट द सिंगल फंक्शन एम्बेडेड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल पेजर। एंड these are the some practiced questions on chapter first। You go through it and here our first chapter is finished and I will start second chapter as soon as possible। Thank you।